Now, computer instructor, senior computer instructor, and Java programming. So today we'll start decision making and looping. So first we'll talk about looping. That means so first looping. So the process of repeatedly executing any number या any block of statement known as looping. तो लूपिंग ये होती है any number of looping. So second one is if we talk about infinite loop. So infinite loop. So infinite loop होता क्या है एक्चुअल में? The statement in the block may be executed any number of times from 0 to infinite number. It's called infinite number, infinite loop या हम बोल सकते हैं इसको infinite loop. Okay, so that is the, and now other statement go to. So go to is the, अगर बात करें go to की तो एक ब्रांच अनकंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि जावा डज नॉट डिफाइन गो टू स्टेटमेंट. ओके, सो now let's talk about process of looping. So first अगर बात करें कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ लूपिंग, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन of a counter. Second, execution of the statements in the loop. थर्ड बात करें तो टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड कंडीशन, टेस्ट for specified condition. Okay, for execution loop. And fourth one is that incrementing the counter. यानी कि ये चीजें हैं. अब जो लूप ऑपरेशन है, लूप परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, तो फर्स्ट वन आता है इसमें व्हाइल लूप, सेकंड आता है आपका डू स्टेटमेंट,
एंड थर्ड आता है आपका 4, यानी कि ये 3 कंडीशन है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, व्हाइल। व्हाइल स्टेटमेंट की। सो नाउ you can see that decision making, looping, infinite loop, go to control statement, perform 3 operations, do, while and for. So we'll talk about while. So next page, we are going to next page. So let me just see that. Okay, while statement. So while is the format of while statement. If you talk about, so simple, I'll tell you, but you know that much. While is an entry control loop statement. तो while क्या है आपका एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। सो द टेस्ट कंडीशंस इज evaluated, and if the condition is true, that means ये evaluate तभी होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, while। ठीक है, अब जो है इसके बाद अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल्स भी बताऊंगा। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट while loop. So we are making a code. Okay, so now you can see the example of using while loop. Okay, so class, we just define first class WHILE while test, or open and close bracket. So now again public static void main. So we are writing strings, args, ये syntax हमेशा लिखना है, और open and closing bracket. Okay, so I will just copy this text. Okay, so now अब हम क्या करेंगे, एक फाइल यहाँ पर यूज करेंगे, string buffer नाम की। so ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट अब बात करें बेसिक प्रोग्राम की कि वाइल का टेस्ट कैसे करना है। सो string स्ट्रिंग BUFFER बफर स्ट्रिंग टाइप का होगा। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट न्यू STRING BUFFBR, ओके, बफर। सो देन स्टार्ट करेक्टर वेरिएबल लेंगे। देन system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो यहाँ पर हम डाल देंगे कि एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग मैंने डाल दी। देन उसके बाद ट्राई ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ओपन एंड क्लोज हमेशा लगेगा ट्राई के साथ, तो ये ध्यान रखिएगा। सो वी आर स्टार्टिंग वाइल दैट मीन्स C इक्वल्स टू केयर SYS system डॉट इन डॉट रीड। ओके, नॉट इक्वल टू, अगर बात करें न्यू लाइन है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमारे ब्रैकेट क्लोज हो गए। अगेन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। सो कर्ली ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट while we are doing. So we are appending a character. So append character. So how we append? Just string our object APPEND append C. Okay, देन क्लोज, आपका ब्रैकेट क्लोज हो ही गया। देन उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो एक और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। नाउ केच EXCEP एक्सेप्शन E, तो अगेन वी हैव टू स्टार्ट ब्रैकेट एंड क्लोज SYS system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, सो प्रिंट ln में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरर इन इनपुट, यानी कि एक्सेप्शन रेज हो जाएगा इस तरह का।
तो यहाँ पर ये ब्रैकेट इसका क्लोज. ओके, नाउ अगेन वी आर राइटिंग system dot println. Okay, so I am just writing a message. You have entered something else, जो भी आपको एंटर करना है. then system dot out dot println string. ठीक है, अब इसको टर्मिनेट कर दिया. अब इस फाइल को हम सेव कर देंगे. किस नाम से? whi while test dot java, और कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करेंगे और यहाँ से हमारी डायरेक्टरी में जाएंगे. ओके, नाउ cd java then java c while while test dot java. okay, so let me see. Error is that append. So one more mistake we are doing. One is the bracket. We have forget to double quote and append dot string dot append. So let's check the code again. What error is they having? 7 error. So one error is that interface expected block. So this is the extra block we are closing. Okay, already we close over here. So now C execute again method println string system symbol. So system dot out dot print missing. Yes, system dot out dot println. So just trace the error and now let's just java while while test. So enter a string. Suppose I am resting java is your object or oriented language. So now you have entered this message. So now this is the while loop, and now again control N, I am writing again code is do while. So using we talk about do while statement. So first understand what is the do while statement, and then we try to execute our code. Okay, so clear. First I am adding some operators and definition of do while. So in do while we can see that that means exit control loop. So do while, okay, do while is a exit controlled loop. That means क्या होगा कि if your condition is wrong but at once it will give you the, आपको ये एक बार तो आउटपुट देगा ही देगा. ओके, सो अगर बात करें डू वाइल की, सो डू वाइल का एक प्रोग्राम बना लेते हैं. यहाँ पर डू टेस्ट लिख लेते हैं और पब्लिक स्टैटिक कर लेते हैं. देन इसके बाद इंटीजर, रो एंड कॉलम वेरिएबल और एक वाई, 3 वेरिएबल हम ले लेंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. ओके, एंड नाउ मल्टीप्लीकेशन टेबल न्यू लाइन एंड देन क्लोज एंड देन बस. सो रो इक्वल्स टू 1. फर्स्ट वी हैव टू राइट रो इक्वल्स टू 1. रो को 1 असाइन कर देंगे एंड इसके बाद हम डू लूप स्टार्ट करेंगे. डू, सो टर्मिन closing and opening bracket. Okay, so now column equals to 1. Okay, so again we are taking do. हम do एक बार और लगाएंगे, multi nesting do. So y is equals to row into column and system system dot out dot print. किसको प्रिंट करना है हमको? y को. ओके, सो y इज द एग्जीक्यूट.
नाउ column equals to column column प्लस 1। यहाँ तक होने के बाद इस ब्लॉक को क्लोज कर देंगे और while जो इसका नेक्स्ट पार्ट है do while, so we are putting while column लेस देन इक्वल्स टू 3 है। अगर कॉलम क्या है लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो टर्मिनेट होगा। हमेशा वाइल लूप जो सिंटेक्स है उसको आपको लास्ट में टर्मिनेट करने पड़ेगा। प्रिंट ln एंड न्यू लाइन विल बी प्रिंटिंग ओवर हियर, यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट हो गई। देन रो इक्वल्स टू रो प्लस 1, ओके, देन क्लोज और अगेन वी हैव टू यूज वाइल, क्योंकि हमने 2 डू लगाए तो 2 बार वाइल लगाना पड़ेगा। सो रो लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड टर्मिनेट। नाउ यू कैन से दैट 2 ब्लॉक क्लोज हैं तो उसको सेव कर देते हैं। डू टेस्ट डॉट जावा एंड एग्जीक्यूट। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग डू टेस्ट dot java. Let's see. Yes, now do java java do test. So यहाँ पे देखिए एक ट्रिपल टेबल्स मल्टीप्लाई कर एक 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन टेबल्स क्रिएट हो गई रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग। सो दिस इज द do statement, do while statement. So now next is that we talk about third point, for statement. So for statement में करना क्या है, हमको for के बारे में जानना है। तो for क्या है, काउंटर लूप होता है। So अगर बात करें the for loop is another entry controlled loop. Okay, so ये क्या है, एक दोबारा वापस से एक एंट्री कंट्रोल लूप है। इसमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, कंडीशन लगानी पड़ती है और इंक्रीमेंट वैल्यू इसमें डालनी पड़ती है। अगर हम बात करें सो व्हाइल लूप का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, सॉरी फोर का। सो एक और फाइल हम ले लेते हैं और हमारा डेटा पेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर लूप टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे फोर। अब जो प्रोग्राम बना रहे हैं हम वो फोर लूप में आप देखिएगा क्या कर रहे हैं हम प्रोग्राम का, कंप्यूटिंग द पावर ऑफ 2 यूजिंग फॉर लूप। यानी कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो पावर चेक करेगा, पावर कंप्यूट करेगा। तो सबसे पहले लॉन्ग पी, देन इंटीजर एन, देन DOUBLE डबल क्यू हम ले लेते हैं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। सो नाउ 2 पावर माइनस n इंटू n ऑफ 2 to power n. So this message we are writing. So p equals to 1 हमने कर दिया, यहाँ पे p को एक वैल्यू असाइन कर दी, और उसके बाद 4 अगर मैं लगाऊंगा तो n को मैं फर्स्ट टाइम 0 इनिशियलाइज करूंगा, ओके, और n क्या चलेगा मेरा, लेस देन 10 चलेगा, और n प्लस, सो प्री इंक्रीमेंट करना है तो प्लस प्लस n चलाऊंगा, क्योंकि वैल्यू 8 नहीं होगी अगर हम वो आउटपुट में नजर नहीं आएगी। सो इफ n डबल इक्वल्स टू 0, अगर n बराबर है 0 के तो p क्या हो जाए आपका 1 हो जाए, और एल्स पार्ट में चलें तो p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाए, और q इक्वल टू 1.0 डिवाइड बाई डबल ऑफ p हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, sy सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे उसको। तो प्रिंट करने के लिए मैं ब्रैकेट में स्पेस देता हूं कि प्लस q प्लस देन प्लस n प्लस डबल इक्वल्स टू अगेन ब्लैंक स्पेस, ओके, एंड देन प्लस p।
सो ये कोड लिखने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और 3 ब्लॉक जो हमने लगाए, सो हमने कितने ब्लॉक लगाए, 4 का ब्लॉक, एक तो ये क्लोज करना पड़ेगा 4 का ब्लॉक। सो 3 ब्लॉक क्लोज हो गए और इसको सेव कर देंगे for test.java। ठीक है, जब for test of java क्लोज हो जाएगा तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल जावा सी for test.java and let's see execute now java for test and let's see the output value according to this 0 to 9 because 10 is the last point, so it will work 0 to 10. So first time we initialize a value of 0. If we initialize a value of 1, then it will be calculated different types of stuff. So that is the output of that manner each and every value because ये value shift इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्पेस थोड़ा बढ़ा देंगे p का। ओके, सो दैट इज ओके। नाउ अल्टर fs और एक बार और से इसको टेस्ट कर लेंगे। ओके, सो ओके, पावर ऑफ 2 तो 2 टू पावर n। ठीक है, तो जितना स्पेस हम देंगे इस तरह से हम इसका स्पेस कम कर देते हैं। ओके, क्यू का और अल्टर fs और यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर देते हैं। ओके, नाउ अगेन वी आर टेस्टिंग, तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट, ये शिफ्ट हो गया, फिर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसे, जैसे ये स्ट्रेट हो गया तो इसको भी थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा तो ये भी स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो है ये चीजें यहाँ पर हो गई खत्म। अगर हम बात करें अब तो एक और चीज आती है इसमें, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। ओके, तो नेस्टिंग क्या हो गया कि फोर स्टेटमेंट विद इन अनदर फोर स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट फोर की, वो क्या कहलाता है आपका फोर लूप। ठीक है, आपको पता ही है कैसे बताया था। अब बात करेंगे जंप्स इन लूप। जंप्स इन लूप, तो लूप में जंप्स में आपको पता ही है, ब्रेक स्टेटमेंट मैंने बता दिया था पहला, कंटिन्यू बताया था। ठीक है, तो ब्रेक तो क्या करता है, स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता है, कंटिन्यू वापस स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं लेबल्ड लूप्स की। तो लेबल्ड लूप्स होता क्या है, वैलिड जावा वेरिएबल है, वैलिड जावा वेरिएबल नेम एक तो यहां पर होता है, एंड लेबल टू अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो गई, और लूप विद द कोलन एट द एंड। सो लूप विद द कोलन एंड, लूप एंड होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को अगर हम पढ़े तो आपको मैं एक प्रोग्राम बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है, आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल एन कंट्रोल बी, सो आई एम चेंजिंग यूज ऑफ या फिर यूजिंग कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स। ठीक है, करना कैसा है, वाइल टेस्ट की जगह हम कंटिन्यू एंड ब्रेक टेस्ट सीबी टेस्ट बना देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, लूप 1 कोलन से इसको स्टार्ट करेंगे, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 100 एंड i प्लस प्लस। तो मेरा लूप स्टार्ट हो गया, एंड इसको टर्न एंड टर्मिनेट, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराने के बाद मैं इसको चेक करूंगा इफ कंडीशन से कि व्हाट अबाउट इफ है या नहीं है। सो अब इफ से हम कंपेयर करेंगे इसको कि i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 चले, और चलते ही ब्रेक कर दे।
आई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 चले और जब से कंडीशन खत्म हो ब्रेक कर दे। फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू 1, ओके, एंड j लेस देन 100 एंड नाउ j प्लस प्लस, ओके। ये एक मेरा, फिर से मैं स्टार्ट करूंगा लूप और क्लोज कर दूंगा। मल्टीपल लूप्स यानी कि नेस्टिंग लूप्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू मुझे प्रिंट करानी, सपोज मुझे एस्ट्रिक प्रिंट कराना है तो मैं एस्ट्रिक की शेप लिख दूंगा यहाँ पे और वो शेप यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो नाउ इफ j डबल इक्वल्स टू 1 and continue loop 1, okay, at terminate, then दो ब्लॉक close और फिर sys system dot out dot println और यहाँ पर हम लिख देंगे termination by array की break, ठीक है। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं इसको सेव करके। तो कंटिन्यू ब्रेक टेस्ट डॉट जावा और एग्जीक्यूट दिस वन, ओके। सो आई एम राइटिंग अवर हियर अ कोड, विच वन, जावा cb test dot java. So let me execute. हो गया, then java cb test. So now you can see that now termination of the break. So let's see, some error is going on. So let me check why pyramid is not printed. So first 1j and j I get this. So first loop is that our I1 and I less than 100 and I plus plus, system dot println blank, okay. And now if I greater than equal to 10, then break, and for integer j equals to 1, j less than 100 and j plus plus, now system dot out dot print, okay, न्यू लाइन में जला नहीं जाएगा ये यहाँ पे। सो यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें प्रिंट जाएगा, ओके। सो नाउ अगेन एग्जीक्यूट ऑफ दिस कोड, ओके। सो अगेन यू कैन सी दैट स्पेस इनफ हो गया, बट some problem is that because we have to write a condition if j double equals to I, not 1. Now see, you can see that pyramid is here. So now we are talking about different portion like that. So this is the looping and branching khatam, finish. Now we'll talk about array. सो अब हम अरे की बात करेंगे यहाँ पे। सो अरे में क्या होगा, ए डबल आर ए वाई अरे, एंड स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो अरे दैट मीन्स, अरे मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स, मल्टीपल values or type can be stored together, and array can hold data of similar type, ठीक है। तो ये चीजें आपके अरे में आती है। अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सिंपल है, इंटीजर वैल्यू ब्रैकेट, दिस इज द न्यू, सो वी आर एडिंग 10 values on that bracket. Okay, so we can add array and like that. So now how can we design? I'll just tell you basic program in array, and after finishing array tomorrow, maybe today we'll finish array, no issue. So array तो एक प्रोग्राम बनाते हैं अरे का, कैसे बनाते हैं, let me just control N and control V, and we are just writing using
program to show the use of continue statement. सो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हुए अरे बनाएंगे हम, और जो क्लास है हमारी ARRAY अरे टेस्ट के नाम से होगी. ओके, पब्लिक टेस्ट हो गया. नाउ इंटीजर अरे डिक्लेयर किया वाइट टाइप का, वाइट मैन. ओके, पब्लिक स्टैटिक के अंदर. ओके, सॉरी इंटीजर. ओके, मेन टाइप का नहीं, इंटीजर. नाउ अगेन वैल्यू UES values should be hold like that. हम यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं 5.0, 8.2, 10.9, and okay, so we are adding this value over here. 16.5 फ्लोट वैल्यू हम ऐड करेंगे यहाँ पे. और एक मिनट. ओके, सो नाउ हमारा एक कंडीशन होगी. अब हम फॉर लूप लगा देंगे कि इंटीजर आई की वैल्यू अगर 0 है और आई लेस देन 5 चलता है, फिर आई को प्लस प्लस कर देते हैं. और एक मिनट, ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. नाउ BALU is system dot out dot println. So we are just writing values of I. so I को हम कर देते हैं प्लस में, कोट प्लस I. this message we are printing over here equals to plus BALU values of I. Okay, so now terminate. Now save this file arraytest.java and execute this file. So java c arraytest.java, and just error, lot of error is there. Let me just consider. Okay, 16.5 possible losses conversation of this one. What is the error? Let me just check it over here. Okay, public static array टेस्ट बनाया है हमने, ब्रैकेट किया, पब्लिक स्टैटिक void main string hours integer values equals to 5.8. ओके, सो यहाँ पर मैं एक इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ. चलो, हो सकता है ना, वैसे एरर तो है नहीं. ओके, यस, दैट इज अ मिस्टेक बिकॉज वी आर टेकिंग इंटीजर एंड आई एम टॉकिंग वैल्यू ऑफ फ्लोट. ओके, so I am picking up 5 value, so I am picking another value 16. So let me execute, because integer not supported to float. Okay, now java array test. So now you can see that storing a value of java. So अगर हमने 10 वैल्यू लिए तो we can store 10 values, we can, तो it's depend on ourselves. अब देखिए, इसी प्रोग्राम में अगर हम बात करें, इस प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पे कमेंट बना देता हूँ, या फिर इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करके Ctrl+C करके एक नई फाइल बनाता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली द इवन नंबर्स इन द अरे, यानी इवन नंबर्स को मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ. सो दिस इज माई नंबर एंड I'll see that loop is going on, values 4 is here. Okay, so now I am just putting over here one more, if values of I, if values of I double equals to
sorry, values of I mod 2 double equals to 0. Okay, then block start और sorry block की तो नीड नहीं है मैंने ना. So print of values of I just ब्लॉक स्टार्ट किया था क्या मैंने, हाँ लूप का किया था मैंने, लूप को ब्लॉक में लेना पड़ेगा. तो वी हैव टू राइट वन मोर ब्लॉक, अल्टर एफ एस. नाउ आई एम जस्ट VEN, एक मिनट जस्ट क्लोज इट. क्लास नेम विल बी चेंज ऑटोमेटिकली. सो हम यहाँ पर क्लास चेंज करेंगे पहले. even number. Okay, now alter fs and now even num dot java, and let's see the test over here. Okay, so now just even number dot test. Okay, now java even num. Now see, so only even number will be entered. Okay, so now one more java program I want, array program I want to tell you. So just the largest, some of the largest element, suppose we are making over here. So control V, and we are making program to program to find the sum and largest of ELEMENT elements in the array. array से हमें largest value find करनी. so integer values हमारी already है. we are writing one more, suppose 56, 78, ठीक है, like that. so I'll be there. Okay, number of values 4 and यहाँ पर 81. okay, so 5 and for 9 value, so we are putting less than 9. okay, तो कंडीशन चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके पहले हमें लार्जेस्ट चेक करना. तो इंटीजर सम इक्वल्स टू 0 कोमा लार्ज कोमा आई. तो हम ये 3 वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे. ठीक है, अब बात करते हैं, एक कमेंट बनाते हैं कि फॉर लूप टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स. तो फॉर लूप लगाएंगे कि जो वैल्यू है i प्लस प्लस चलेगी सिस्टम. तो यहाँ पर एक प्रिंट हो जाएगा एस. यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सम प्लस इक्वल टू वैल्यूज ऑफ i. okay, now terminate, and then system dot out dot println. so system dot out dot println if you talk about. okay, so we are writing over here sum plus sum. okay, ये हमारा एक काम हो गया. अब सेकेंड लूप हम लगाएंगे, फॉर लूप टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट elements in the array. so for so first we are giving large value equals to values of I असाइन कर देंगे. ओके, सो जिसके बाद हम 4 लगाएंगे वापस से. अगर i इक्वल्स टू 1 हो, i लेस देन 9 हो और i प्लस प्लस हो, ये मेरी कंडीशन पुट हो गई. देन इफ वैल्यूज ऑफ i शुड बी ग्रेटर देन लार्ज. सो एक मिनट, ब्लॉक विल बी देयर. इफ वैल्यूज ऑफ i, then large equals to values of I, then close, and then system dot out dot println. यहाँ पर करते हैं
uh, largest largest value in the array. Now plus larg. So let me just execute this file. What is the file name? So first sum large SUMLARG sum large dot java. Okay, so now execute this file. Java C sum large dot java, and error. Let's see values we are writing wrong. I think where is the values? Yes, that one. So first one, and now let me clear error. Now see that next error is integer I. तो that is I is already defined. हमने अगर I को already define कर दिया है तो हम integer यहाँ से हटा देंगे. Okay. Okay, now Java sum large. So exception is the range sum of 261 because sum large dot main array index of out of branch. So we have to write 10 less than 10. Okay, so 10 and okay, again exception is thread main. Okay, so Java index out of bound exception 9. So index की जो range है वो out of bound जा रही है. So हमारे कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे एलिमेंट हैं और इंडेक्स की रेंज भी जो है आई की 0 लेस देन 10 चल रहा है और आई प्लस प्लस. ओके, एंड इफ आई लेस देन 10 अगेन और आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1. ओके, तो एक जगह वैल्यू 1 है और एक जगह है 0. सो यहाँ पर हम कर देते हैं 11. ओके ओके, again large is out of index bound. So without defining we are not taking much value, so I am just removing few value. Let me just check. Only we are putting 4 value 81 और यहाँ पर हम करके देखते हैं लूप को थोड़ा स्मॉल. इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर दे रहा है तो क्यों दे रहा है. सो range integer range is little bit, so maybe. Okay, so now again main method exception raise हो रहा है कि जो error है वो large जा रही है वैल्यू से. तो अगर हम यहाँ पर 1 को भी हटा देते हैं, स्मॉल वैल्यू हम पुटिंग करते हैं. सो टोटल ऑफ 3 डिजिट से पार 2 डिजिट के पार जा रहा होगा आई थिंक. सो इंटीजर वैल्यूज 5 2 6 8 एंड कोमा 10. ओके, सो नाउ लेस देन 5 हो, 5 से कम हो, आई प्लस प्लस सम प्लस वैल्यूज ऑफ आई हो, प्रिंट सम हो जाए लार्ज वैल्यूज ऑफ. अगर आई नहीं है यहाँ पर आएगा 0. That is the error we are picking out of. So now again I am trying to value extra. So 56 78 94 and 111. So 3 6 9 value we are putting 9 and okay, so we are putting 9. Okay, now alter fs, now execute again. Okay, so now you can see that our largest value is array and
370. So now if you like this code, and if you like my coding, so please share and subscribe my channel, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा जैसा आपको अच्छा लगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.